Good afternoon, student. I hope all of you will fit and fine at your home. And you know very well that your exam is your at hand, unit third. So I am going to revise revision of the chapter. And you are watching that this chapter is the invention of Vita bones. It's very important for you for UT third. So now I explain the summary of this chapter. So let's start. Bonka White and its impact. Mr. Billy Bonka, the owner of the chocolate factory, had decided to invent Wonka White. This will make people younger, but it is too strong. After taking this, there is a rapid decrease in age. Some people have disappeared because their age has reached in minus. One person's age has become minus 87, so he needs to wait for 87 years to be visible to other. Mr. Bonka must invent a new thing to reverse the change. Now they collected the oldest thing, that is the ingredients of Vita bones. Inside the chocolate factory, Mr. Wonka is searching for a new recipe which will make people older. He asked Charlie about the oldest thing in the world. Charlie's reply was a tree. And you know very well, here which tree described is Briscone pine tree. Mr. Wonka added that it is the Briscone pine tree growing in the slope of Wheeler Peak in Nevada, USA. Nevada is the place of USA. Is a tree that lives longer than anything else. Mr. Wonka then went into the great glass elevator to travel across the world to collect items from some of the oldest living things. He collected a pint of chaff from 4,000-year Briscone pine tree, toenail clipping from a 168-year-old Russian farmer, an egg laid by a 200-year-old tortoise, the tail of 51 years old horse, and so on. Many things that I and Sir S.K. Sir explained in the chapter in the class. In his inventing room, after working with all these elements for hours, he prepared a cupful of oily black liquid. He gave 4 drops of it to a 20 years old Oompa Loompa volunteer. उन्होंने इसकी जो बूंदें थीं वो उनके 20 years ओल्ड वहीं जो काम करता था ओम्पा लोम्पा जिसका नाम है उस पे उन्होंने इन्वेंट करा, उन्हें चेक करा कि क्या होता है. चार्ली आस्क्ड what happened after that. Mr. Bonka informed him that the creature, after a bit of shivering and wrinkling, became a 75 years old, and he confirmed the invention of Beta Bong to Charlie. Now, I explain in Hindi. मिस्टर बिली बोंका, जो कि ऑनर ऑफ द चॉकलेट फैक्ट्री के मालिक थे, हैड डिसाइडेड टू इन्वेंट वोंका वाइट, जिन्होंने निश्चय करा डिसाइडेड कि वो वोंका वाइट का इन्वेंशन करेंगे. दिस विल मेक पीपल यंगर, जिससे लोग जवान हो जाएंगे. वट इट इज टू स्ट्रॉन्ग, लेकिन यह इतनी मजबूत थी. आफ्टर टेकिंग दिस, इसे लेने के बाद, देयर इज रैपिड डिक्रीज इन एज, कि एकदम डिक्रीजमेंट आ गया, कम होती गई उम्र.
सम पीपल हैव डिसअपियर्ड, कुछ लोग तो गायब हो गए। बिकॉज देयर एज हैज रीच्ड इन माइनस, क्योंकि उनकी उम्र किस में पहुंच गई, माइनस नंबर में पहुंच गई। जैसे किसी का जन्म हुआ, उसका फर्स्ट डे होता है जन्म का, तो उससे भी पीछे पहुंच गई। वन पर्सन एज हैज बिकम -87, एक व्यक्ति की उम्र समझ लो -87 हो गई। -87 का मीन्स ये है कि अगर कोई बच्चा उसे नया जन्म लेने के लिए 87 ईयर्स तक वेट करना पड़े, यही तो -87 मीन्स अगर उसे रिवर्स दोबारा जन्म लेना हो पृथ्वी पे, तो उसे 87 ईयर का वेट करे फिर वो जन्म लेगा। यानी वन पर्सन एज हैज बिकम -87, सो ही नीड टू वेट 87 ईयर्स टू बी विजिबल टू अदर, दूसरे लोगों को देखने के लिए उसे 87 ईयर का वेट करना पड़ेगा। मिस्टर बोंका मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग टू रिवर्स दिस थिंग। अब मिस्टर बोंका परेशान हो गए, ही वाज वेरी वरीड कि व्हाट विल हैपन, अब क्या होगा। सब लोग मतलब जो जिस दवा को ले रहा है वो -87 में पहुंच रहा है, तो उन्होंने सोचा एक ऐसी नई न्यू थिंग्स का हम इन्वेंट करते हैं जिसका ये एंटीडोट हो, मतलब जो 87 माइनस हो जाए तो वो 87 प्लस हो जाए, रिवर्स में कंडीशन ले आए। इंग्रेडिएंट फॉर बीटा बोंक्स इनसाइड द चॉकलेट फैक्ट्री, उस फैक्ट्री के अंदर मिस्टर बोंका इज सर्चिंग फॉर अ न्यू रेसिपी, उन्होंने खोजी एक नई रेसिपी खोजी, विद विच विल मेक पीपल ओल्डर, जिससे लोग ओल्डर हो जाएंगे। ही आस्क्ड चार्ली अबाउट द ओल्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, उन्होंने कहा भाई चार्ली अब बताइए कि इस संसार में सबसे पुरानी चीजें कौन कौन सी हैं, बातें करी, उससे पूछा। चार्ली रिप्लाई वाज अ ट्री, चार्ली ने आंसर दिया कि भाई एक पेड़ है, ब्रिस्कोन पाइन। मिस्टर बोंका एडेड इट इज अ ब्रिस्कोन पाइन ट्री, मिस्टर बोंका ने बताया कि यह एक पेड़ है, ब्रिस्कोन पाइन ट्री, ग्रोइंग इन अ स्लोप ऑफ व्हीलर पीक ऑफ नवाडा, जो कि नवाडा के यूएसए में है, और नवाडा के पीक में ये पेड़ उगता है। पीक माने चोटी, नवाडा जगह का नाम है यूएसए की। ए द ट्री दैट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स, और इससे पुराना कोई भी नहीं है चीज जितना ये पुराना है। कितना है, 4000 ईयर ओल्ड। मिस्टर बोंका देन वेंट इन द ग्रेट ग्लास एलिवेटर, अपनी गाड़ी में मतलब जो भी उनकी होगी, ट्रैवल करने गए अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे संसार में, बिकॉज दे वांटेड टू कलेक्ट द आइटम विच इज वेरी ओल्डेस्ट टू एंटीडोट ऑफ दिस मेडिसिन, टू कलेक्ट आइटम फ्रॉम सम ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग, कुछ पुरानी चीजें उन्हें मिली जो यू नो वेरी वेल, जो कि चैप्टर में डिस्कस हुई हैं कौन कौन सी चीजें हुई। ही कलेक्टेड कुछ सम ऑफ देम आई एक्सप्लेन हियर। ही कलेक्टेड अ पिंट ऑफ शेफ 4000 ईयर ब्रिस्कोन पाइन ट्री का शेप ले आए। शेप मतलब होता है एक गुदगुदा से जैम टाइप का होता है, पेड़ों पे लगा हुआ, आप यू नो वेरी वेल। He collected a pint of sap from 4,000 years Wisconsin pine tree, an old toenail clipping from a 168 old Russian farmer, nails toenails अंगूठे के नाखून को ले आए, एक 168 साल पुराना रसिया का किसान था। एन एग लेड बाई 200 ईयर ओल्ड टोटवाइज, और एक अंडा जो कि 200 साल पुराने कछुए का। द टेल ऑफ 51 ईयर्स ओल्ड हॉर्स, पूंछ जो कि 51 साल पुराने घोड़े की, एंड सो ऑन मैनी आइटम्स वो कलेक्टेड करा, दैट यू रिफर्ड इन द चैप्टर। इन ही इन्वेंटिंग रूम आफ्टर वर्किंग विद ऑल दीज एलिमेंट फॉर ओवर, घंटों तक वो इन पे काम करते रहे, जो भी चीज वो आइटम्स लाए थे अपने इन्वेंटिंग रूम में, उनका जहाँ आविष्कार करते थे, वो कमरा, वो प्रयोगशाला जिसे कह सकते हैं आप। ही प्रिपेयर्ड अ कप फुल ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड, उन्होंने एक कप ऑयली ब्लैक लिक्विड, काला लिक्विड तैयार करा। ही गेव 4 ड्रॉप ऑफ इट टू 20 ईयर ओल्ड ओम्पा लोम्पा वॉलंटियर। अब बात ये आती है कि ये किस पे ट्राई करा जाए, तो ही गेव अ 4 ड्रॉप, 4 बूंदे दी उन्होंने अपने 20 साल के जो उनका वहीं पे काम करता था ओम्पा लोम्पा, जो कि वॉलंटियर था। ओम्पा लोम्पा नेम लर्न कर लेना आप लोग, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन भी आएंगे, शॉर्ट में भी आ सकते हैं। ओम्पा लोम्पा जो 20 ईयर ओल्ड का था, उस पर ये बूंदे ट्राई करी। चार्ली आस्क्ड what happened after that. Mr. Bonka informed him that the creature, after a bit of shivering and wrinkling, became 70 years old. चार्ली आस्क्ड what happened, चार्ली ने पूछा क्या होगा
आफ्टर द मिस्टर बोंका इन्फॉर्म हिम दैट, मिस्टर बोंका ने उसे बताया कि कोई भी व्यक्ति इसे पिएगा तो एकदम कांपने लगेगा जरा, एंड रिंकलिंग और झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, बिकम 74 ओल्ड, जैसे ऐसा हो जाएगा जैसे 75 साल का कोई बूढ़ा व्यक्ति हो गया हो। एंड ही कन्फर्म द इन्वेंशन ऑफ बीटा बोंग चार्ली, और उन्होंने बताया कि ये है बीटा बोंग, जिससे जो भी हमारा मतलब हुआ है, जो माइनस में पहुंच गया, वो सब बैलेंस में आ जाएगा इससे। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन आंसर of this chapter. Okay, the question answer of this chapter. You will be watching that the first question of your book is choose the right answer. इसमें आपको राइट आंसर चुनना है, जो भी आपके राइट आंसर हो। फर्स्ट क्वेश्चन इज MCQ। मिस्टर विली वोंका इज, मिस्टर विली वोंका हैं, कौन है ये? ऑप्शन, कुक हैं ये, इन्वेंटर हैं ये, या मैनेजर हैं? यू सेलेक्ट वन ऑफ देम, आपको इसमें से एक सेलेक्ट करना है। तो मिस्टर विली वोंका एक क्या है? इन्वेंटर है। ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन, वोंका वाइट मेक पीपल, जो वोंका वाइट थी जिससे लोग क्या होने लगे, ओल्डर या यंगर? द आंसर इज यंगर, यू नो वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, मिस्टर बोंका wants to invent a new thing which will make people, मिस्टर बोंका जो कि चाहते थे एक नई चीज का आविष्कार करना जिससे लोग हो जाएंगे यंगर या ओल्डर। माय डियर स्टूडेंट, तो यू नो वेरी वेल द न्यू थिंग दैट मिस्टर बोंका वांट टू इन्वेंट दैट पीपल बिकम ओल्डर। ओके, older is the right. And next question is, can anyone's age be a minus number? What does minus 87 means? And those students who have not understand the meaning of the question, the meaning of the answer, they can easily understand through this video. जिनके समझ में नहीं आया था, क्लास में कोई भी प्रॉब्लम हुई हो चैप्टर में, तो वे इस वीडियो के माध्यम से इजीली समझ सकते हैं। अब लेकिन बट यू विल ओपन योर बुक, आप अपनी बुक खोलेंगे, जरूर अपनी बुक खोलेंगे, अपने जो नोटबुक भी खोलेंगे, उसमें से आप मेरे साउंड को रिएक्ट करते करते 1 बाय 1 चेक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, कैन एनीवन्स एज बी अ माइनस नंबर? व्हाट डज माइनस 87 मीन? क्या किसी की एज माइनस नंबर में जा सकती है? व्हाट डज माइनस 87 मीन? और यहाँ पे जो इस चैप्टर में यूज हुआ है माइनस 87 मीन्स, इसका मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है? आंसर देखते हैं। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। थोड़ा आंसर चेंज हो सकता है 7th बी के स्टूडेंटों का, बट द मोटो ऑफ द आंसर इज सेम, लेकिन जो उसका आंसर का मेन मोटो है वो सेम रहेगा, डोंट वरी। ओके, यू कैन राइट बोथ ऑफ देम, इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं। No, it is not possible. What the main thing in left the question, one thing I explain something more important, that the main thing, if you the concept of the chapter is cleared, then you can write the all question answer. If the concept is not clear, you can't do nothing. अगर आपका कॉन्सेप्ट चैप्टर का क्लियर है, क्वेश्चन आंसर का सब कुछ क्लियर है, तो आप क्वेश्चन आंसर को यू नॉट नीड टू लर्न, आपको लर्न करने की आवश्यकता नहीं होगी। इट इज यू कैन राइट इजली योरसेल्फ, आप खुद ही इससे सरल तरीके से आप लिख सकते हैं। तो कम टू द पॉइंट दैट कैन एनीवन्स एज बी माइनस नंबर? व्हाट डज माइनस 87 मीन? तो आंसर नो, इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। माइनस 87 दैट द मैन बिकम 87 ईयर टू बैक टू, कि कोई भी व्यक्ति 87 ईयर बैक पहुंच जाए, ऐसा संभव है इस करंट लाइफ में, आधुनिक जिंदगी में, मॉडर्न लाइफ में? नो, ऐसा संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने 87 ईयर बैक हो जाए। 87 साल का तो हो जाएगा कि भाई ये हमारे ग्रैंडपा हैं, ये 87 ईयर के हैं, तो ये तो हो सकता है पॉसिबल, लेकिन यह माइनस 87 नहीं होगा।
तो वही आंसर में कहा नो इट्स नॉट पॉसिबल। -87 मीन्स दैट द मैन बिकेम 87 ईयर्स बैक टू हिज बर्थ, अपने जन्म से 87 ईयर बैक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर विली बोंका जो थे बिगिन बाई आस्किंग हिमसेल्फ 2 क्वेश्चन, उन्होंने अपने आप से 2 क्वेश्चन अपने अपने मतलब कंसाइन से, अंतरात्मा से, कंसाइन से अंतरात्मा को कहते हैं, अपने मन से, अपने माइंड से 2 क्वेश्चन पूछे अपने आप से। व्हाट आर दे, वो क्वेश्चन क्या थे, वो क्वेश्चन कौन से थे जो अपने आप से पूछ रहे थे। यहाँ पे थोड़ा स्टार्टिंग में आपको क्लू दिया है, फर्स्ट में व्हाट इज एंड सेकंड में व्हाट लाइफ, देन फर्स्ट में है व्हाट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड, कि संसार की सबसे पुरानी चीज क्या है। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था जो उनके आस्किंग हिमसेल्फ, जो कि अपने आप से पूछ रहे थे व्हाट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड, एंड द सेकंड व्हाट लिव लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स, ऐसी कौन सी चीज है जो लंबे समय तक मतलब लिव सकती है, जी सकती है। तो देयर आर 2 क्वेश्चन जो कंप्लीट हुए थे, यही क्वेश्चन वो अपने आप से पूछ रहे थे जो होता मतलब उसमें डिस्क्राइब हुए हैं। नाउ वर्किंग विद द टेस्ट में देखते हैं पेज 102, पेज नंबर, क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट ट्री डज मिस्टर बोंका मेंशन, कौन सा पेड़, किस पेड़ के मिस्टर बोंका मेंशन, किस पेड़ के बारे में मिस्टर बोंका मेंशन कर रहे हैं इस चैप्टर में, एंड विच ट्री डज ही से लिव द लॉन्गेस्ट, और ऐसा कौन सा पेड़ है जो कि लंबे समय तक जी सकता है, ये क्वेश्चन है। नाउ लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, द ट्री मिस्टर बोंका मेंशन आर डगलस, फिर ओक, सीडर एंड द ब्रिस्कोन पाइन, जो उन्होंने मेंशन करे थे मिस्टर बोंका ने, वो कौन कौन से पेड़ थे। फर्स्ट था डगलस फिर, सेकंड ओक, ओक कहते हैं बलूत के पेड़ को, हिंदी वी कैन से बलूत एक वृक्ष होता है, बहुत ओल्ड वृक्ष होता है और लिविंग इसकी लाइफ भी बहुत लंबी होती है, नॉट ब्रिस्कोन पाइन, लेकिन ब्रिस्कोन पाइन की टक्कर की नहीं होती। द ट्री मिस्टर बोंका मेंशन आर, फर्स्ट डगलस फिर था, सेकंड ओक ट्री था which Mr. Bonka described, third cedar, and four, you know very well, the Bristol cone pine tree. Okay, and in this question the second requirement is कि which tree does he say live the longest। अब उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन था कि उसने कौन कौन से पेड़ों को डिस्क्राइब मेंशन करा था, तो ये पेड़ पेड़ के नाम आ गए डगलस फिर ओक सेडार बिस्कुन पाइन। अब सेकंड क्वेश्चन में इसी में है वी ट्री डज ही से लिव द लॉन्गेस्ट, कि कौन सा सबसे लंबा टाइम सर्वाइव मतलब जी सकता है पेड़, तो वो कौन सा था, द ब्रिस्टल कोन पाइन लिव्स द लॉन्गेस्ट। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग डज दिस ट्री लिव, इसी में नेक्स्ट है वेयर कैन यू फाइंड इट, मीन्स है हाउ लॉन्ग डज दिस ट्री लिव, हाउ लॉन्ग डज दिस ट्री लिव, यह पेड़ कितने समय तक जिंदा रह सकता है। यहाँ पे अगर चैप्टर में ये आ जाए हाउ लॉन्ग दिस ट्री लिव, तो यहाँ आपको ब्रिस्टल कोन पाइन का डिस्क्राइब नहीं होगा, लेकिन उसी पेड़ के बारे में यहाँ डिस्कस हुई है। तो यू डोंट पजल्ड, यू डोंट कंफ्यूज टू सी दिस आंसर इन योर यूटी थर्ड, कि अब क्या लिखें, तो यहाँ पे ब्रिस्टल कोन पाइन के बारे में ही बताया जा रहा है। तो हाउ लॉन्ग डज दिस ट्री लिव, कि यह पेड़, दिस ट्री मतलब ब्रिस्टल कोन पाइन ट्री कितने समय तक रह सकता है जीवित, एंड वेयर कैन यू फाइंड इट, और आप इसे कहाँ पा सकते हैं, आप कहाँ देख सकते हैं। देखें, ब्रिस्टल कोन पाइन लिव्स ओवर 4000 ईयर, ब्रिस्टल कोन पाइन ट्री है जिसकी उम्र है 4000 साल से ऊपर। वी कैन फाइंड इट अपॉन द स्लोप, स्लोप माना होता है ढलाव, कह सकते हैं स्लोप जो होता है, द व्हीलर पीक इन नेवाडा यूएसए में हम इसे पा सकते हैं। अगेन ब्रिस्टल कोन पाइन ट्री लिव्स ओवर 4000 ईयर and we can find it upon the slope of Wheeler Peak in Nevada, USA. Okay, I think that all the material I discussed before you that you can understand fully, and I'm doing the revision work
of this chapter, the invention of beta booms. Okay, and the rest of the question I shall explain you in a next video, and as well as the chapter also. Okay, so learn this summary of this chapter and learn the question answer also. Okay.